السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال حب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، آمین۔ کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دائرہ فانی کے اندر مبعوث کیا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، درخت پہ لگے ہوئے پتیوں کے تعداد سے زیادہ، زمین پہ پڑے ہوئے ذرات کے تعداد سے بھی زیادہ درود و سلام کے پھول نثار فرما جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں نماز کے موضوع پر کچھ بات بتانے کی کوشش کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور میرے چینل سسٹر انفو پر میں اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں گی، آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نماز کے وقت پر پڑھنا اور اس کے حفاظت کرنا یہ بہت ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں بھی ہم کو نماز کا حکم دیا تھا، اور نماز کے بارے میں ہمیں کہا تھا کہ نماز کو پڑھو۔ اسی لیے نماز بہت اہم رکن ہے اور بہت ضروری ہے، اس کے حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے وقت پہ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کیسے پڑھا جائے؟ تو اللہ رب العالمین اپنے قرآن کریم سورہ احزاب کے اندر فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا جس میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہیں، مطلب ہم کو انہی کے مطابق، ان کے کہے جیسے اللہ کے رسول نے سجدہ کیا اور سجدے میں کیا پڑھا، جیسے رکوع کیا رکوع میں کیا پڑھا، جیسے قیام کیا قیام میں کیا کیا، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا اسی طریقے سے، اور نماز ہی کیا بلکہ جتنی عبادتیں ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ویسے پڑھنا ہی ویسے ہی عبادتیں کرنا اور ویسے ہی نماز پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ بہترین آئیڈیل ہے۔ آئیڈیل نمونہ کے مطلب ہوتا ہے کہ وہ انہی کے جیسے سب کچھ کرنا ہے۔ میں آپ کو مثال سمجھا دوں۔ مثال کے طور پر ایک سوٹ ہے، اس میں بہت اچھا پورا ماپ، لمبائی، چوڑائی، پھر اوپر سے گلے میں ڈیزائن، ہاتھ آستین میں ڈیزائن سب بنا ہوا ہے۔ ہم جائیں ٹیلر کے پاس کہیں کہ اس کو یہ 10 سوٹ ایسا ہی ایک دم سیم بنا دینا، لیکن ٹیلر سوچے ارے
कौन इतना मेहनत करेगा, चलो गले में ही बना देते हैं, आस्तीन में रहने दो। और हम गए टेलर के पास, बोले कि ज़रा हमारा कपड़ा दे दो तो हम देखेंगे। तो आस्तीन में डिजाइन नहीं बना तो हम उस कपड़े को उस टेलर के मुंह पर फेंक देंगे, कहेंगे हमको नहीं चाहिए कपड़ा, हमने तुमको एक सिंपल दिया था, एक नमूना दिया था, एक आइडियल दिया था जिसके मुताबिक तुमको मुझे कपड़ा बनाना था, तुमने इस तरीके से कैसे बनाया, हमको नहीं चाहिए, हमको दूसरा कपड़ा ला के दो, हमको ये कपड़ा नहीं चाहिए, और हम उसको पैसा भी नहीं देंगे। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही मुताबिक हमको नमाज पढ़ना है और उसी तरीके से नमाज की हिफाजत करनी है, तब जाके हमको अल्लाह ताला के बारगाह में हमारी नमाज कबूल होगी। नहीं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन में भी हमारे मुंह पर हमारी इबादत को और हमारी नमाज को हमारे मुंह पर फेंक देगा, जैसे कि हम कपड़े को टेलर के मुंह पर फेंक देंगे। ये है नमाज। नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुए कहे के मुताबिक पढ़ना है। इस्लाम के 5 बुनियाद हैं। इस्लाम के 5 बुनियाद हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा काला समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह इकामतिस सलाह इताइज ज़काह व हज्जिल बैत व सौम रमज़ान। अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, समेतु मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए इस्लाम के कितने बुनियाद हैं 5। ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और दूसरा बुनियाद क्या है? दूसरा बुनियाद नमाज, नमाज कायम करना। आइए जान लेते हैं नमाज कायम करने का मतलब क्या है। नमाज कायम करने का मतलब ये है कि नमाज को नमाज के वक्त पर अदा किया जाए। जब जोहर का वक्त जिस टाइम है उस टाइम ही अदा किया जाए। ये नहीं कि जोहर का नमाज 3 बजे पढ़ा जाए और असर का नमाज 5 बजे पढ़ा जाए। इस तरीके से नमाज को नमाज के वक्त पर पढ़ा जाए और वैसे ही पढ़ा जाए जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ये है नमाज। और दूसरी चीज़ ये है कि नमाज में खुशू व खुजू होना बहुत ज़रूरी है। नमाज में खुशू व खुजू होना बहुत ज़रूरी है। हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और है, तो ऐसा नमाज नहीं है। हमारी माँ बहनें हैं, नमाज पढ़ रही हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, लेकिन नमाज पढ़ रहा है और उसका दिमाग बर्तन में है, बर्तन धुलना है, अभी कपड़ा धुलना है, पोछा लगाना है। तो ऐसा नहीं, इसमें नहीं। जब नमाज हम पढ़े तो सिर्फ ऐसे पढ़ें और ये तसव्वुर करें अपने दिल में कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। और अगर ऐसा ना हो सके तो ये तसव्वुर करें कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। इस तरीके से हमको नमाज में खुशू व खुजू होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हिफाजत किया करते थे और नमाज को उस नमाज के वक्त पर ही पढ़ा करते थे और उसमें खुशू व खुजू भी ज़रूरी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफत का दौर है, जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फजर के नमाज में नमाज पढ़ा रहे थे तो अबू लूलू ने आपके पेट में नेज़ा मारा, जिससे आपका पेट फट गया और आप बेहोश होकर गिर गए। लेकिन जब होश आया तो आपने नमाज पढ़ी और किसी ने पूछा, ए उमर अमीरुल मोमिनीन, आप इस हालत में नमाज पढ़ें। और अगर किसी का ऐसा हालत हो और वो इस हालत, उनका पेट फट गया था, तबीबों ने कहा था कि दूध पिलाओ, शहद पिलाओ। उनको दूध और शहद पिलाया जाता तो पेट के रास्ते से बाहर आता, दूध पिलाया जाता तो पेट के रास्ते से बाहर आता। इस हालत में भी उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज पढ़ी। और किसी ने पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, अगर इस हालत किसी का ऐसा हालत रहे और वो नमाज ना पढ़े तो आप इसके बारे में क्या फतवा देते हैं? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि जो इस हालत में हो और वो नमाज ना पढ़े तो मेरा फतवा उसके बारे में ये है कि वो इस्लाम से खारिज है। आज
हम हट्ठे कट्ठे हैं, मोटे ताजे हैं, हमको कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जानबूझकर हम नमाज को तर्क कर रहे हैं, नमाज को छोड़ रहे हैं। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निगाह में हमारा क्या मामला है, फैसला कर लेना, बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब बच्चा 7 साल का रहे तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब वो 10 साल का हो जाए तो उसको मार मार कर नमाज पढ़ाओ। अल्लाह के रसूल ने कहा लेकिन आज वालिदैन के ज़ुबान में वो ताकत नहीं है, वो जुरात नहीं है, आज माँ बाप के अंदर वो ताकत नहीं कि कहें बेटा नमाज पढ़ो, क्योंकि अब्बा आप तो नमाज पढ़ते नहीं, अम्मी आप तो नमाज पढ़ती नहीं, और मुझे नमाज पढ़ने के लिए कह रही हैं। वह बेटा झट से जवाब, आज हमारे ज़ुबान में वो ताकत नहीं है कि हम बच्चे से कहें कि बेटा नमाज पढ़ो या बेटी नमाज पढ़ो, नहीं पर कह सकते। एक हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला सअल्तु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमालि हब्बु इलल्लाहि तआला क़ाला अस्सलातु अला वक़्तिहा। क्या कहा? सअल्तु, मैंने सवाल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अय्युल अमालि हब्बु इलल्लाहि तआला, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल क्या है? तो क्या कहा? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह के नज़दीक अय्युल अमालि हब्बु इलल्लाहि तआला काला सलातु अला वक़्तिहा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज को नमाज के वक्त पर कायम करना, यानी कायम का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि नमाज को नमाज के वक्त पर अदा करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल है। उसके बाद कहा कुल्तु सुम्मा अय्यु, काला कहा बिर्रुल वालिदैन, कुल्तु सुम्मा अय्यु, काला अल जिहादु फी सबीलिल्लाह। बहरहाल इससे मेरा कोई वास्ता नहीं, मतलब नहीं है। किसी मौजू पर इंशाअल्लाह इस मौजू पर भी कुछ बोलने की कोशिश करूँगी। अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह हमको नमाज को नमाज के तरीके पर और उसके वक्त पर पढ़ने की तौफीक दे, और हम सबको जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और हमारा जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और मेरे चैनल को सिस्टर इन्फो पर सब्सक्राइब करें, और हम सब आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।